Good morning, students. This is your teacher Neelam Helawat, and we will study about the enzymes today. In this particular lecture, we'll study about the enzymes. In the previous videos, we have talked about the various types of micromolecules and the macromolecules. And now we'll come to the process of enzymes. How does enzymes, they help us in a particular chemical reaction? See, the enzymes, they are biological catalyst. Okay, these are the biological catalyst, and this means they increase the rate of a reaction. So आपके जो enzymes हैं basically ये protein से बने हुए होते हैं. They are made up of protein. Okay, and this particular protein, or you can say this particular enzyme, when it is present in a reaction, it increases the rate of reaction of that particular you can say chemical reaction. So ये किसी भी reaction की rate को बढ़ा देते हैं. The speed at which the reaction proceeds, that increases. So all your enzymes, they are proteins. Means enzymes, they are made up of proteins. But we should always remember, all proteins are not enzymes. So all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Now apart from this, there are certain enzymes that contain nucleic acids. कुछ enzyme हैं जिनके अंदर आपके nucleic acids present होते हैं, and those enzymes, they are referred to as riboenzymes. So I can say mostly the enzymes, they are proteins in nature. Okay, they are proteins in nature, and we use simple word like enzyme. But there are some enzymes that contain nucleic acids, that is RNA, and that is why they are called as riboenzymes. Okay, so and these enzymes, they are specific in nature. Specific means they catalyze a particular chemical reaction. वो एक ही तरीके की chemical reaction में participate करते हैं. और क्योंकि हमारे ज़्यादातर enzymes जो है proteins होते हैं, and we know proteins have a different kind of structures. Proteins का जो अलग अलग structure होता है. There are primary proteins, there are secondary proteins, there are tertiary proteins. So basically we'll be talking about the enzymes that forms the tertiary structure. So enzymes भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं. Some enzymes, they have a primary structure, some enzymes have a secondary structure, and in this particular lecture we'll be talking about those enzymes that have a tertiary structure. Tertiary structure means they have three-dimensional structure. Three-dimensional structure, in the three-dimensional structure there will be certain crevices, there will be certain pockets, and these pockets, they will be called as active sites. यानी आपके एंजाइम के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस होंगी जिन्हें हम एक्टिव साइट्स कहेंगे, और इन एक्टिव साइट्स के अंदर आपका सबस्ट्रेट फिट हो सकता है. ओके, सो द सबस्ट्रेट दैट विल फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एंड दस द एंजाइम विल स्टार्ट इट्स फंक्शन. ओके, so enzymes are biological catalysts. They are mainly proteins, while some enzymes, they contain nucleic acids. They are referred to as riboenzymes. And enzymes, they are specific in nature. They act only on a specific type of substrate. Now let's take an example. As I told you that the enzymes, the presence of an enzyme, it speeds up the reaction. ठीक है, ये enzyme जो है वो आपके reaction को speed up करता है. So let's take an example. Suppose there is an enzyme which is called as carbonic anhydrase. हम एक एंजाइम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. नाउ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, इट कन्वर्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड. ये जो हमारा एंजाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करता है, कंबाइन करवाता है, और कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है. And this particular reaction, it is catalyzed by carbonic anhydrase. इस reaction को carbonic anhydrase catalyze करता है. Now just imagine, अगर ये enzyme absent है, if this enzyme is absent, it is not present at this position, then only 200 molecules of carbonic acid will be formed in an hour. So एक घंटे में आपके सिर्फ 200 molecules बनेंगे carbonic acid के. लेकिन अगर ये enzyme present है, so 6 million molecules will be formed in 1 second. You can just imagine 6 million molecules, they will be formed in 1 second. तो एक सेकेंड में आपके पास 1 million कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. So you can imagine that the presence of an enzyme speeds up the reaction.
एंड इन दिस केस इट स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय 10 मिलियन टाइम्स. ये जो रिएक्शन की स्पीड है वो लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ओके, and we know that any metabolic pathway, any process that is occurring in living organisms, it is a multi-step. It always involves a number of steps. Okay, कोई भी कन्वर्शन, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जब हमारी बॉडी में होता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो मल्टी स्टेप होता है. इट इज़ नॉट दैट इट इज़ बीइंग कैटलाइज्ड इन अ सिंगल स्टेप. नो, it takes a number of steps and it involves number of enzymes at every step. Means different enzymes at different steps. Now, just for example, let's take up the glycolysis. Glycolysis, it is a process of conversion of glucose into pyruvic acid. ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है, इसमें हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, और उसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. सो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आप दो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. ओके, now let's see the reaction. Suppose first of all the glucose will be converted into glucose 6 phosphate. देखिए, जो फर्स्ट कन्वर्जन है उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं. एंड दिस रिएक्शन विल बी कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज. तो ये जो रिएक्शन है ये हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज विल कन्वर्ट इट. देन फ्रॉम ग्लूकोज 6 phosphate to fructose 6 phosphate, it is the phosphoglucose isomerase enzyme that will act upon the glucose 6 phosphate. Likewise, we say that at every step there is a different enzyme that is acting on the conversions. आप हर स्टेप पर देखिए अलग अलग एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इन टोटलिटी अगर आप काउंट करते हैं, सो टोटल देर आर 10 एंजाइम्स विच आर पार्टिसिपेटिंग दिस रिएक्शन. सो ग्लूकोज से लेकर पायरुवेट की फॉर्मेशन तक 10 enzymes they are involved. Means the glucose will be converted into pyruvate with the help of 10 enzymes. At every step a different type of enzyme is utilized. हर step पर एक different enzyme participate कर रहा है reaction में. Okay, I hope you've understood this. So there are 10 reactions and every reaction is being catalyzed by different type of, you can say it is being catalyzed by different type of enzyme. So if even a single enzyme is missing, okay, if a single enzyme is missing, then in that case the complete metabolic process will stop. If just imagine if there is no aldose, अगर मान लीजिए हम assume करते हैं कि aldose enzyme present नहीं है, so in that case obviously the reaction will be blocked at this stage. यहाँ पर ही reaction block हो जाएगा. It will not be converted into next stages. So all enzymes, they are very specific in nature and each step in the glycolysis is being converted or is being acted upon by a different enzyme. So if you want that reaction must reach the completion, then all the 10 enzymes, they must be present. एंड वी नो दैट इन अ केमिकल रिएक्शन, देखिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म. ओल्ड बॉन्ड्स दे आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स दे आर फॉर्म्ड. लाइक इन दिस केस दीज टू दे आर रिएक्टेंट्स एंड दीज टू दे आर प्रोडक्ट्स. सो इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स द बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन. यहाँ पर आपके बॉन्ड्स टूटेंगे, यहाँ पर आपके नए बॉन्ड्स बनेंगे. ओके, सो न्यू बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन केस ऑफ So old bonds they are broken and new bonds they are formed. नए बॉन्ड बन रहे हैं, ओल्ड जो है वो टूट रहे हैं. सो हम रिएक्शंस को 2 तरीके से कैटलाइज कर सकते हैं. वन इज़ योर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस. इनऑर्गेनिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं. द रिएक्शंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कार्बन और हाइड्रोजन, दोज रिएक्शंस दे आर रेफर्ड टू एज इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस. While the reactions that have carbon and hydrogen, they are referred to as organic chemical reactions. Okay, they are referred to as organic chemical reactions. Okay, everyone.
So we have two types of reactions, chemical reactions, organic and inorganic. Now see, we can easily understand how much product is formed. देखिए reactants हमारे पास हैं, कितने product बन रहे हैं कितने time में. We call that thing as a rate of reaction. यानी कितना product का amount बन रहा है कितने time में, उसे हम कहते हैं rate of reaction. So rate of reaction means the amount of product formed per unit time. So हम इसको designate करेंगे dp upon dt से. So rate will be equal to dp upon dt. Okay, that will be equal to dp upon dt. Now अगर हमें reaction का direction पता है, okay, if we know the direction of the reaction, means suppose P is combining with Q to form the R, and here if we know the rate of reaction, that reaction is occurring in this particular direction, then in that case instead of rate we will use velocity. तो हम कहेंगे velocity of reaction. Okay, तो आपका जो है rate of reaction word use ना करके हम कहेंगे velocity of the reaction will be equal to dp upon dt if we know the direction of the reaction. Okay, तो उस केस में now the reaction पर जो है टेम्परेचर और कुछ फैक्टर्स का उस रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. मीन्स देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस योर केमिकल रिएक्शन एंड टेम्परेचर इज़ वन सच फैक्टर. टेम्परेचर जो है उनमें से एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है. एंड फ्रॉम द स्टडीज़ इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट अगर हम रेट को डबल कर दें या रेट को हाफ कर दें, ओके, दिस रेट ऑफ रिएक्शन और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये जो है ये या तो डबल हो जाती है या ये हाफ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज ले आते हैं. अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं एंड द चेंज इज़ बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ईदर वी कैन डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. सपोज करिए अगर हमारे पास टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अब हमने कर दिया 20 या हमने इंक्रीज कर दिया अप टू 40. सो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर का वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है. पहले हमारे पास टेम्परेचर था 30, अब या तो 20 है या 40. सो देयर इज़ अ चेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर. ओके, सो इन सच अ केस द रेट विल ईदर डबल और इट विल बिकम हाफ. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो या तो हाफ हो जाती है या वो डबल हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज और द डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर. नाउ हाउ डज एन एंजाइम फंक्शन? एक एंजाइम किस तरीके से काम करता है? हाउ डज एन एंजाइम फंक्शन? नाउ देर आर टू मॉडल्स दैट सजेस्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम. देर आर टू मॉडल्स, दो मॉडल्स हैं जो हमें एंजाइम किस तरीके से फंक्शन करता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज अ लॉक एंड की मॉडल. जो फर्स्ट है वो है हमारा लॉक एंड की मॉडल. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. Suppose there is an enzyme salivary amylase. Do you remember this enzyme? Have you heard this name salivary amylase? Yes, okay. It is basically an enzyme which is present in your saliva. ये enzyme है जो saliva पे present होता है and it acts upon carbohydrate. ये carbohydrate पे act करता है, okay, and it converts them into sugar. ये carbohydrate को sugar में convert करता है. Clear? ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम है वो है हमारा सलाइवरी अमाइलेज. सो हम एंजाइम को इंडिकेट करेंगे ई से, और ये किस चीज़ पर काम करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर. सो कार्बोहाइड्रेट्स विल एक्ट एज एस, दैट इज सबस्ट्रेट. ठीक है, एंजाइम को वी विल इंडिकेट विद ई एंड सबस्ट्रेट मीन्स जिस चीज़ पर वो काम करता है उसको हम इंडिकेट करेंगे एस से. एस मीन्स सबस्ट्रेट. सो सबसे पहले क्या होगा? द सबस्ट्रेट इट विल बाइंड विद द एंजाइम. सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा, मीन्स कार्बोहाइड्रेट विल गो एंड बाइंड विद द सलाइवरी अमाइलेज. सो दिस इज कॉल्ड एज ई प्लस एस. ओके, substrate it will bind with the enzyme and we call it as E plus S. Now once it is binded with the enzyme, now this enzyme will act upon the substrate. enzyme जो है substrate पर काम करना शुरू करेगा और उसे convert करना शुरू करेगा. ठीक है,
देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, तो हम इसे E+S कहेंगे. After some time, once it binds, enzyme binds to the substrate, so there are some changes that will occur in the enzyme. एंजाइम में कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिससे कि ये बाकी किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ना कर सके. So it will result in the formation of enzyme substrate complex. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. अब आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एंड वी विल कॉल दिस एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले क्या हुआ, E+S बना, ठीक है, फिर E-S बना, देन एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया और E-P बन गया. एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो प्रोडक्ट है ये एंजाइम से रिमूव हो जाएगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ E+P. Okay, so there are 4 steps. First, substrate will go and bind with the enzyme and will form the enzyme substrate complex. The enzyme will act upon the product and on the substrate and will convert into product, and there will be association which is called as enzyme product complex, and then in the end the product will dissociate from the enzyme and it is called as E+P. So this is one model. Now let's understand this in a different terminology. Suppose करिए लॉक एंड की बात कर रहे थे हम. ये जो की है हमारा ये एंजाइम है, ओके, और लॉक जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है. So now here both of them they are separate from each other. So E+S. Okay, this is E+S because both of them they are separate. Now we have inserted the key into the lock. So this is called as E-S. अब हमारा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया है, या सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम से जुड़ गया है, एड अप हो गया है, तो इसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट विल टर्न द की. अब हम क्या करेंगे, चाबी को घुमाएंगे. जैसे हम चाबी को घुमाएंगे लॉक विल ओपन. ओके, लॉक विल ओपन. सो दिस विल बिकम योर E-P कॉम्प्लेक्स. लेकिन चाबी अभी भी उसी के अंदर इंसर्टेड है. मतलब सपोज ये हमारा लॉक है, ठीक है. नाउ लॉक हैज़ ओपनड बट स्टिल द की इज इंसर्टेड इनटू द लॉक. की जो है वो लॉक के अंदर ही है. सो दिस को हम कहेंगे E-P कॉम्प्लेक्स. नाउ इन द एंड वी विल रिमूव द की फ्रॉम द लॉक. सो दिस विल योर E+P कॉम्प्लेक्स. इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं. ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट जो है हमारे एंजाइम से बाइंड हो गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. एंजाइम जो है अब सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है और एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है. आफ्टर दैट जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया. सो E+P. नाउ वी ऑलवेज रिमेंबर दिस, सबस्ट्रेट जो है वो आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है. इसका मतलब सपोज ये हमारा एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस पर हमारे 2 सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं. तो ये हमारी एक्टिव साइट है, इस पर जाकर आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाइंड करेंगे. ये जो साइट है, इस साइट पर सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड कर सकते हैं, कुछ और बाइंड नहीं कर सकता है. दिस मीन्स that the shape size of this groove is such that only carbon dioxide and water can bind with this. Okay, now once the enzyme binds with the substrate, जैसे ही आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा, ओके, सो सडनली देयर विल बी अ मॉडिफिकेशन इन द एक्टिव साइट. ये जो साइट है ये चेंज हो जाएगी सो दैट नो अदर सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद इट. Okay, and then slowly it will be converted into the bicarbonate ions plus, or you can say carbonic acid, which will further dissociate to form the bicarbonate and hydrogen ions. Now ये जो हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम में कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे हीट, pH, salt concentration. Now these factors they can destroy the active site of the enzyme. ये जो फैक्टर्स हैं ये आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दे कैन डिस्ट्रॉय द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, एंड बिकॉज द 3-dimensional स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, द टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, एंड सो द एंजाइम विल ऑल्सो लूज इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन. ये एंजाइम तभी तक एंजाइम की तरह काम करेगा जब तक इसके पास ये एक्टिव साइट है. So we can say in nutshell we can say that heat, pH and salt concentration they have the ability, if there is any change, if there is any extreme, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, pH बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बन गया है,
तो ये तीनों आपके एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, एंड जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन दैट अगर हमारे पास एंजाइम है, that's A is your CO2, let's assume CO2 and B is your H2, like carbonic anhydrase की हम बात कर रहे हैं. So whenever these two A and B they will bind with the enzyme. A and B जो है एंजाइम की साइड पर जाकर बाइंड करेंगे. बाइंड करने के बाद एंजाइम will change its you can say shape and it will become tightly bounded to the substrate. Enzyme will act upon the substrate and will convert into the product. The product will be released and again the enzyme will start another cycle. तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप है वो डिटरमाइन करती है कि उस पर कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है. ठीक है. The second model that we have is an induced fit model. Now one we have done is a lock and key model. The second is induced fit model. Now this purple colored is your enzyme. ये आपका enzyme है, ये आपके substrate हैं. These A and B are your substrates. So this model says that first of all the substrate they will come and bind with the enzyme. सबसे पहले आपकी substrate जो है वो enzyme के साथ bind करेंगे. जैसे ही substrate enzyme के साथ bind करेगा तो enzyme अपनी shape को change करता है. The shape of the enzyme changes so that it can accommodate all the substrate molecules. एंजाइम शेप चेंज करता है जिससे कि उसके अंदर वो सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली अकोमोडेट हो सके. देन दिस एंजाइम इट विल एक्ट अपॉन द सबस्ट्रेट एंड इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड एंड द एंजाइम विल अगेन रीगेन, इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप. एंजाइम जो है वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ओके, सो सबसे पहले आपके सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेंगे. एंजाइम अपनी शेप, एक्टिव साइट की शेप को चेंज करेगा जिससे कि दोनों सबस्ट्रेट उसके अंदर बाइंड हो सके. Then enzyme will act upon the substrate, product will be formed, the product will again be released and again the enzyme will regain its original shape. So this model is called as induced fit model, okay, where the enzyme will undergo the changes in shape so that the substrate they can fit into the groove of the enzyme. Now coming to how do enzymes speed up a chemical reaction. Enzymes जो है वो किस तरीके से रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. एंड दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते. इवन देन दे ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. दिस मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट एन एक्टिवेशन एनर्जी. द आंसर इज लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. Now first of all let's see, I'm taking a simple reaction. Suppose we have a glucose molecule. The glucose molecule has to be respiration process is going on where your glucose molecule it will combine with oxygen and it will be converted into water plus carbon dioxide. तो respiration process हो रहा है, energy release की जाएगी, glucose को burn किया जाएगा. ठीक है. Now we have indicated a graph where we are plotting the graph between the energy and the course of reaction. ठीक है. अब हमारा क्या है कि हमारा रिएक्शन जो है वो इस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ आवर रिएक्शन इट इज प्रोसीडिंग एट दैट स्पीड. ओके. नाउ इस रिएक्शन को जब प्रोसीड करता है तो इसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरत होती है. अब हमारे पास जो है ये जो रेड लाइन डॉटेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी है लेकिन ये रिएक्शन इस लेवल पर होगा, यहाँ पर होगा. सो दिस डिफरेंस मीन्स हमारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है और हमें इतनी एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को कैटलाइज करने की, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. ठीक है. ओके. तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को चाहिए जिससे कि वो किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर सके. जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तभी प्रोडक्ट्स बनेंगे. ओके. सो हमारे रिएक्टेंट्स है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ये यहाँ पर ये हमारे इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है लेकिन उन्हें थोड़ी एनर्जी और चाहिए जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके. नाउ व्हाट विल हैपन. सो हमारा रिएक्शन, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड एट अ वेरी स्लो रेट. तो हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो रेट से प्रोसीड करेगा
and very small amount of products will be formed from the reactants. ठीक है, understood? Now because when enzyme is present, अब हमने क्या किया कि इस रिएक्शन के अंदर एंजाइम को ऐड कर दिया. इस रिएक्शन ने एंजाइम ने क्या किया, ये जो बैरियर था एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी उसने रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड कर दी सो दैट रिएक्शन कैन स्टार्ट. सो रिएक्टेंट्स जो हैं दे कैन ओवरकम द बैरियर, एनर्जी बैरियर, एंड देयरफॉर दे कैन इंटरैक्ट एट अ एप्रिशिएबल रेट. वो इस एनर्जी रेट को ओवरकम कर सकते हैं. ओके, इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं. एंड अगर हम उन्हें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये एंजाइम्स जो है वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं सो डैट ये रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट से हो सके और जल्दी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके. लेट्स हैव अ डिफरेंट, आई विल टेक अ वेरी अनदर एग्जांपल. देखिए यहाँ जस्ट हैव दिस वन, आई एम टेकिंग दिस. सपोज ये हमारे रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर हमारा कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है. दिस येलो एंड यू कैन से दीज आर योर रिएक्टेंट्स. अब इन रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके. अब हमने क्या किया, एंजाइम ऐड कर दिया. इस एंजाइम ने क्या किया, इस एनर्जी बैरियर को लोअर कर दिया, कम कर दिया. अब इन एटम्स और आयंस को बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिससे कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. सो इमीडिएटली दिस जो हमारी एनर्जी बैरियर था वो एंजाइम ने कम कर दिया है. एंड नाउ द मॉलिक्यूल्स दे कैन ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर एंड दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स. Thus we can say the enzymes they lower the activation energy of a reaction. So enzyme जो है वो आपके reaction की activation energy को कम कर देते हैं so that a large fraction of reactants they can cross the energy barrier and thus the speed of reaction will increase. So activation energy is lowered when enzymes bind to the reactants. So activation energy जो है वो automatically कम हो जाती है जब आपके reactants enzyme से bind कर जाते हैं and thus the reaction will reach to completion. So as I can say, activation energy, it is the additional energy required to start a chemical reaction. ये वो मिनिमम और एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड है जो आपके रिएक्टेंट्स को चाहिए जिससे कि वो कंबाइन हो सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में, सो वील फाइंड ये हमारा सबस्ट्रेट है का लेवल इतना है. दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स लेवल ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, अब बिना एंजाइम के, अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो हमारा देखिए सबस्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है. अब बिना एंजाइम के जो है हमें इतनी एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है अगर एंजाइम नहीं है. अब एंजाइम क्या करेगा, जब एंजाइम प्रेजेंट है तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ ले आता है. अब एटम और मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. And thus majority of the atoms or molecules they can bind with each other and they can be converted to product. So बिना एंजाइम के मॉलिक्यूल्स और एटम्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, और जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो वो इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, और इसीलिए आपका रिएक्शन जो है वो हायर रेट से प्रोसीड करता है. ओके ओके. So for today we'll be talking about, we have read the page numbers 154 to 156. So you will again go through these page numbers, and if there is any query you will ask me, and secondly you will make notes of this topic. Okay, so that's all. Bye everyone.